में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। शायर राहत इंदौरी साहब के इसी शेर के साथ हम आगे बढ़ते हैं, खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं। हमारे पास वाराणसी से एक खबर आ रही है। वाराणसी एयरपोर्ट पर ओमिक्रॉन वायरस को देखते हुए हाई अलर्ट कर दिया गया है और विदेशों से आने वाले यात्रियों की यहां टेस्टिंग की जा रही है। आरटीपीसी टेस्टिंग के बाद ही इन्हें यहां से छोड़ा जा रहा है, जाने दिया जा रहा है। चूंकि ओमिक्रॉन का ग्राफ धीरे धीरे करके भारत में भी बढ़ता जा रहा है, विदेश से आने वाले लोग ग्रस्त होकर आ रहे हैं और भारत में इस बीमारी को फैलने की आशंका बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए वाराणसी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। यह तस्वीर आप देखिए, स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से यहां हाई अलर्ट किया गया है। आसनसोल में निखिल बंग शिक्षक समिति का एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन के दौरान कई मुद्दों पर खास तौर से चर्चा की गई। हमारे संवाददाता ने जब एक सदस्य से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यह 43वां साधारण सभा है और अनुमंडल स्तर का ये 43वां साधारण सभा है और इस सभा के दौरान शिक्षकों के कल्याण को लेकर बातचीत की जाती है, शिक्षकों के उत्थान को लेकर बातचीत की जाती है। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर भी सम्मेलन बहुत जल्दी होने जा रहा है। এছাড়া যখন আমাদের শতবর্ষ 167 জন শ্রমিক পরিবারকে নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু খাদ্য সামগ্রী দিয়ে সাধ্যমতো পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করি, আবার জেলা কমিটির ক্ষেত্রে এটা সত্যি যে তার একটা বড় অংশ হচ্ছে অবসরপ্রাপ্ত। এবার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এই যে 600 আমরা যে সংখ্যা বলছি আমাদের জন্য যেমন 48 জন, তার মধ্যে আমাদের 23 জন হচ্ছে অবসরপ্রাপ্ত মোর্চার প্রার্থী বা আমাদের আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার তার সমর্থনে আমরা বানপুর বাস স্ট্যান্ডে এবিপিটি এর সহযোগিতায় আমাদের জোনাল কমিটির পক্ষ থেকে একটি কর্মসূচি করি মুখোমুখি প্রশ্ন উত্তর। কি নিয়ে সভাটা? আজকে আমাদের নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি এবিটিএ আমাদের আসানসোল মহকুমা শাখার 43তম বার্ষিক সাধারণ সভা, অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং আজকে জেলা গ্রন্থাগারে হচ্ছে। এর পরের পর্যায়ে আমরা জেলা বার্ষিক সভায় যাব, সেখান থেকে রাজ্য বার্ষিক সভা। এটা সারা রাজ্য জুড়েই আমাদের সংগঠনের ঘটে থাকে। এটাই। আজকে কি নিয়ে চর্চা হচ্ছে, কি বিষয়টা নিয়ে? আজকে মূলত সারা দেশে শিক্ষার অবস্থা, বিশেষ করে এই কোভিডকালীন সময়ে, এই গত 2 বছর এই কোভিডের সময়ে কীভাবে রয়েছে পরিস্থিতিতে রয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা সারা দেশ এবং রাজ্যে। সারা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা দেখেছি যে সবচেয়ে বিপর্যস্ত হয়েছে এই করোনাকালে হচ্ছে রাজ্যের এবং দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। দুটো সরকারই অত্যন্ত দিশাহীনভাবে কাজ করেছেন। এই সময় কি করতে চাইছেন তারা নিজেদের কাছে তাদের সেটা স্পষ্ট নয় এবং স্কুল কলেজ দীর্ঘ সময় বন্ধ করে রেখেছিলেন। আমাদের রাজ্য সরকার বারবার বলা সত্ত্বেও আমরা দাবি রেখেছিলাম এবিটিএগতভাবে যে সব কিছুই যখন খেলা চলছে, মেলা চলছে, উৎসব চলছে, নির্বাচন হয়েছে, দুর্গা পুজো হয়েছে, কালী পুজো হয়েছে, আমরা বলেছিলাম যে স্কুলটাও একটু একটু করে এবারে স্বাভাবিক করার দিকে লক্ষ্য রাখুন। যাই হোক, তারা আমাদের কথা প্রথমে শোনেননি, পরে তার পরবর্তীকালে কালী পুজোর পরে এই স্কুল খুলেছেন। খুবই ভালো একটা সিদ্ধান্ত, কিন্তু আমরা বারবার এটা দাবি করেছিলাম যে স্কুল খোলা হোক। এবং মূলত আজকের যে আমাদের আলোচনার বিষয় সেটা হচ্ছে যে এই কোভিডকালীন সময় শিক্ষা ব্যবস্থা কোন জায়গায় রয়েছে, কী অবস্থায় রয়েছে, আমাদের কি করতে হবে। আমাদের পেশাগত কিছু সমস্যা রয়েছে শিক্ষকদের, নানা রকম এই ট্রান্সফার নিয়ে নানা রকম গণ্ডগোল হচ্ছে। যাদের ট্রান্সফার পাওয়ার প্রয়োজন তারা পাচ্ছেন না, ট্রান্সফার যাদের কম প্রয়োজন তারা পাচ্ছেন। আমাদের পেশাগত কিছু দাবি দেওয়া রয়েছে, বিয়ের দাবি রয়েছে। প্রধান শিক্ষকদের উপর অত্যন্ত চাপ আসছে প্রশাসনিকভাবে, যখন তখন তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে খুব কম সময়ের মধ্যে এই কাজটা করে পাঠাও। এই সমস্ত বিষয়গুলোই আজকে আমাদের এখানে আলোচিত হবে এবং এই আমাদের আগামী বছর, আগামী দিনের দেশের সরকার এবং রাজ্যের সরকারের বিরুদ্ধে, তাদের অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, শিক্ষার স্বার্থে, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে আমাদের কাজের অভিমুখ কী হবে, আমরা কি করতে চাইছি, কি করতে চাইব, আজকের এই সভা থেকে
সেই সভায় আমরা আজকে একটা নির্দিষ্ট করে একটা অভিমুখ পেতে চাইছি। আমরা আশা করি যে সবার আলোচনা, প্রতিনিধিরা এসছেন বিভিন্ন অংশ থেকে, বিভিন্ন আঞ্চলিক শাখা থেকে, সারা মহকুমা, তারা আলোচনার মাধ্যমে তাদের আমরা সেই অভিমুখ খুঁজে পেতে চাইছি যে আমাদের আগামী দিনে চলার পথ কী হবে। আপনার নাম? আমার নাম অনিন্দ দাস, আমি আসানসোল মহকুমা শাখার সম্পাদক। प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। थिएटर फेस्टिवल आसनसोल में शुरू किया गया है और इस थिएटर फेस्टिवल के दौरान कलाकार प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां से फंड रेज किया जा रहा है ताकि जो जरूरतमंद हैं, ग्रस्त लोग हैं, उनकी मदद की जा सके। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने आयोजकों से बातचीत की। তারা আসানসোলে যারা কিছুদিন আগে ফ্লাড ভিকটিম হয়েছে তাদের হেল্প করার জন্য একটা থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল অ্যারেঞ্জ করেছে। সেখানে উড়ানকে বলেছে, ওরা আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তো উড়ান শীতলা বাউড়িপাড়া অঞ্চলে যে শিল্পীরা আছে তাদের নিয়ে একটা থিয়েটার ওরা করেছে। এইটাই আজকের ইনঅগরাল থিয়েটার এই ফেস্টিভ্যালের। এবং ওরা আজকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রীতিলতা বৈদ্যদারের জীবনের ওপর একটা থিয়েটার প্রেজেন্টেশন করেছে। ধন্যবাদ। আমার নাম সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়। अपना परिचय? আমি উড়ানের একজন কর্মী। आसनसोल कल्चरल फ्रंट के तरफ से ये एक थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए हैं और इसका जो मेन मोटिव है, इसको करने के पीछे जो मेन हमारा उद्देश्य है वो ये है कि आसनसोल में कुछ दिन पहले एक बहुत ही ज़्यादा बारिश का सिचुएशन हो गया था और उसके कारण रेलपार एरिया में बोलिए या फिर डिपोपाड़ा एरिया में और बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे लोग बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड हुए। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि इसको एज ए फंड राइजर हम लोग यूज़ करें और इससे जो भी हम लोगों का थोड़ा बहुत पैसा आता है उसका पूरा ही हम लोग वहाँ पे डोनेट कर दें। ये रहा हम लोगों का मेन मोटिव। और इसके साथ साथ जो थिएटर का कल्चर है आसनसोल के अंदर, उसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, उसका भी साथ दिया जाए और लोगों को थोड़ा थिएटर का मज़ा भी लुत्फ करवाया जाए। तो इसी के कारण इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। आपका परिचय? मेरा नाम है प्रलय पात्र, आई एम मेंबर ऑफ आसनसोल कल्चरल फ्रंट। आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज एक प्रेस मीट बुलाई गई और इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, उनके साथ थे शिवराम बर्मन और भी कई नेताओं की मौजूदगी यहां देखी गई। इन नेताओं ने एक बार फिर से सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस पर हमले किए और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बातें भी उठाई गई और कहा गया कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो टेंडर होते हैं उनमें कई तरह की गड़बड़ियां भी सामने आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इन नेताओं ने क्या कहा। আপনাদের প্রশ্ন থাকে আপনাদের 3 কোটি টাকা যেহেতু ডিউজ আছে, যেহেতু কর্পোরেশনের টেন্ডার আপনার পার্কিং এবং হোর্ডিং এর এক বছরে 3 কোটি টাকা ডিউ আছে। আপনি শুধু আসানসোলটা দেখছেন, আপনি রানীগঞ্জটা দেখছেন না কেন? রানীগঞ্জে প্রচুর ডিউ আছে, জামুরিয়াতে প্রচুর ডিউ আছে, কুলটিতে প্রচুর ডিউ আছে, সেটা ধরছেন না কেন? অবশ্যই অবশ্যই কর্পোরেশন রানী, আমি বলছি তো তারা শুধু আসানসোলের পুরনো 50টা ওয়ার্ড দেখাচ্ছে, কুলটিটা দেখাচ্ছে না। তারা ভাবছে মানুষ কুলটি ভুলে গেছে, তারা ভাবছে যে জামুরিয়া ভুলে গেছে, তারা ভাবছে রানীগঞ্জ ভুলে গেছে। সব আমাদের মনে আছে, সব নজর আছে এবং দিন না, সবগুলো হিসাব দিন না। কুলটি, জামুরিয়া, রানীগঞ্জ পুরো তথ্য দিন না কত টাকা ডিউ আছে। আর তারা যদি নিজেরাই বলছে যে 1 কোটি টাকা চুরি করেছি, তারা যখন নিজের মুখে বলছে 1 কোটি টাকা চুরি করেছি, তাহলে চোর কি সঠিক অঙ্ক কোনোদিন বলে? যারা চুরি করবে 1 কোটি টাকা, তারা 1 কোটি বলবে না? নিশ্চয়ই। তাহলে 1 কোটি টাকা যদি নিজের মুখে স্বীকার করছে, তাহলে 3-4 কোটি টাকা তো এটা হবেই। না না, আমি বলছি যে কখন কখন এখন এই এফআইআর কি মানে হয়?
একদিকে আপনি বলছেন যে আবার টেন্ডার করে দিচ্ছে, আগে তো এফআইআর করে এতদিন এফআইআর করে 1 বছর যখন টাকাটা ডিউ হয়ে গেল তারপর এই এফআইআর করতে করতে তো এখন নির্বাচন চলে আসে, 1 মাস পর হয়তো নির্বাচন হতো না, তখন বলবে আমরা কি করবো, আমরা তো নেই, পরের বার ভোটে আসি তখন দেখব। এতদিন কি করছে, 1 বছর নির্বাচন করেননি কেন? 3 মাস যখন ডিউ হলো তখন এফআইআর করেননি কেন? On high demand, Sunita's Makeover presents one-day grand seminar for makeup and advanced hairstyle. A satisfied makeup artist, Sunita Bhattacharya, first time in Asansol, 19 December 2021. Organized by KMF Beauty. Limited seat. Book your seat now. Contact number 8335062477. आसनसोल में ऑटो चालक और टोटो चालक आपस में भिड़ गए और दोनों में काफी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में संघर्ष होने के दौरान कई ऑटो चालक बुरी तरह घायल भी हुए। कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर क्या मामला था दोनों में, किस तरह से यहां संघर्ष हुआ और कई लोग घायल भी हुए। आखिरकार यहां यूनियन के नेता भी पहुंचे और यूनियन के नेता और पुलिस के लोग यहां पहुंचे, तब जाकर मामला शांत हो पाया। हम लोग आरटीओ, डीएम, एसडीएम को कई बार डेपुटेशन दे चुके हैं कि आसनसोल शहर में 46 जो बेआईनी टोटो का शोरूम चल रहा है, बेकार लड़कों को वो लोग जो है प्रलोभन देकर, लालच देकर टोटो बिक्री कर रहा है। लेकिन टोटो किस रूट में चलेगा, उसका सिस्टम क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है। एक एक रूट में आप देखिए, जहाँ पर 10 यहाँ ऑटो चलता था वहाँ 50 टोटो आ गया है। किसी के पास में 10-10 साल का लड़का, 10 साल का लड़का जिसकी उम्र नहीं हुई गाड़ी चलाने की, 6-6, 7-7, 8-8 पैसेंजर लेके जा रहा है। यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके लिए कौन दायी है? आरटीओ को दायी है, इसके लिए हमारा प्रशासन दायी है, इसके लिए जो है टोटो शोरूम दायी है। हम लोग बार बार बोले हैं, जो टोटो बेआईनी रूप से बेच रहा है उसके पास कोई ट्रेड लाइसेंस भी नहीं है, उसके पास सरकार की कोई अनुमति भी नहीं है कि वो टोटो बेचेगा। टोटो बेचने का सिस्टम होगा कि वो किस रूट में चलाएगा। जो टोटो जिसको बेचा जा रहा है उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, क्योंकि एक एक टोटो में 6 आदमी 7 आदमी करके जा रहा है। तो ये तो देखना होगा कि जो गाड़ी चला रहा है वो ड्राइवर है कि नहीं है। लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासन को बार बार बोले, आरटीओ को बार बार बोले हैं, प्रत्येक दिन जो है टोटो का शोरूम खुल रहा है और धड़ल्ले से बेकार युवकों को गुमराह करके कि तुम लोग टोटो खरीदो, बेआईनी रूप से टोटो बेचा जा रहा है। प्रत्येक दिन अशांति हो रही है, ऑटो के साथ टोटो का, बस के साथ टोटो का, आपका जाके मिनी बस से टोटो का लगातार झमेला हो रहा है। आज भी एक ड्राइवर को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। हम लोग बार बार बोले हैं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो शोरूम का मालिक है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाए, ये चिंता का विषय है। उसको गिरफ्तार करना होगा जो किसकी अनुमति से बेआईनी तरीके से बेकार युवकों को ठग रहा है और लोगों को जो है माने अशांति के मुंह में डाल रहा है। ऐसे शोरूम मालिकों पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम लोग कल फिर आरटीओ ऑफिस में जाएंगे, हम लोग जो धरना पर बैठ जाएंगे। हम लोग आरटीओ के चैम्बर में जब तक नहीं उठेंगे, जब तक बेआईनी टोटो का शोरूम बंद नहीं होगा, तब तक हम लोग जो आंदोलन लगातार चालू रखेंगे। कहीं ना कहीं अमर चटर्जी जी जो नगर निगम प्रशासक हैं, उनके ये तो परिवहन बिल्कुल नहीं गलत बात। किसी के पास इसके पहले जो मेयर था जितेंद्र तिवारी के अमल में गलत तरीका से टोटो को कुछ लोगों को शोरूम को ट्रेड लाइसेंस दिया गया था। लेकिन हमारा जब से अमरनाथ चटर्जी यहाँ पर के मेयर हैं, जब चेयरपर्सन हुए हैं, तब से एक भी बेआईनी टोटो का शोरूम को कोई ट्रेड लाइसेंस नहीं मिला। बिना ट्रेड लाइसेंस के वो लोग अपना शोरूम चला रहा है। हम लोग इसके पहले भी अमरनाथ को बोले थे, अमरनाथ ने कहा था इस पर कार्रवाई होगी, हम लोग जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम लोग कल फिर अमरनाथ से मिलेंगे। हम लोग पहला काम है परिवहन दफ्तर, इसके लिए मुख्य जो है
इसके लिए दोषी है परिवहन दफ्तर पर इस पर नकेल कसनी चाहिए थी। प्रत्येक दिन अशांति हो रही है, प्रत्येक दिन यहाँ झमेला हो रहा है। और हम लोग जो है कल आरटीओ से मिलेंगे और हम लोग सिर्फ आश्वासन नहीं चाहते हैं, हम लोग तब तक धरना पर बैठ जाएंगे आरटीओ ऑफिस में जब तक बेआईनी टोटो शोरूम को जो बंद नहीं किया जाएगा। बंद करने से नहीं होगा। यहाँ मारा, ये 1 हफ्ता पहले मारा था सर। देखिए 1 हफ्ता पहले मारा हुआ है हम लोग। ये कौन मारा है आपको? टोटो वाला क्यों मारा? माना वही समझाते यहाँ पर मत रहिए, लगाने अभी हो गया हमारे पास। आप क्या करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं। आने के लिए बोलते हैं, नहीं हटाता है, मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो अभी आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं? क्या सर? प्रशासन से क्या चाहते हैं? चाहते हैं यहाँ पर गाड़ी नहीं लगे, मतलब टोटो ना लगे। हाँ टोटो ना लगे। आपका नाम? जी आपका नाम मोहम्मद नौसाद। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से यहाँ के व्यवसायियों को, व्यापारियों को भी तवज्जो दिया जा रहा है। आज आसनसोल में जिला प्रशासन की तरफ से एक बार फिर से बैठकें की गईं और इस बैठक में तमाम व्यावसायिक संगठन के प्रतिनिधि मौजूद थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और कई पक्षों पर खास तौर से बातचीत की गई। इस संदर्भ में एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संचालक से हमारे संवाददाता ने बात की। ট্রেন নার্স অনেক বড় বড় হসপিটালে মানে চোখের সামনে ট্রেনিংটা আমরা তো করি না, তার জন্য হেলথ ডিপার্টমেন্ট করে। তো আমরা ওদের সঙ্গে কথা বলছি, মানে ব্লাড টানতে পারে ওই রকম যে কাজগুলো করতে পারে সেরকম আমরা তৈরি করছি। তার জন্য যদি দরকার হয় আমরা ওই কোর্স আপনাদের এখানে যদি হেলথ মানে যারা ওই কোর্সের মধ্যে কমিটিতে আসছে আমরা ওদেরকে নিয়ে যাতে নার্সিং আমরা করতে পারবো। নার্সিং এর জন্য এএনএম জিএনএম ট্রেনিং একটা সিস্টেম আছে, নার্সিং কাউন্সিল আছে, কিন্তু তার বাদে আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন যে আপনারা কিভাবে নার্সিং, আমরা ওনাদেরকে কিছু আইডিয়া দিয়েছি, ওনারা ওটা এক্সপ্লোর করছে তাতে আরো কিছু লোককে ওরা নার্সিং এ ঢুকিয়ে দিতে পারে। পোর্টালে যারা অ্যাপ্লাই করেনি তারা নার্সিং এ ভ্যাকেন্সি থাকলে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। ওটা আমার ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ স্যার আপনার পারমিশনে আমি একটা কথা সব চেম্বারস কে এখানে একটু বলবো। এর আগে যে আইডেন্টিফাই করে আপনারা পোর্টালে তুলবেন, আপনারা দেখেছেন তখন জিএমডিএসি সাহেব বা আমার উৎকর্ষ বাংলা সেল থেকেও কিন্তু আপনাদের এই ওটিপি ভেরিফিকেশন বা যে কোনো কিছুর জন্য আমরা লাগাতার আপনাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করেছি। এইটা কিন্তু হ্যাঁ ট্রেনিংও দেওয়া হয়েছে, হ্যান্ডস অনও করানো হয়েছিল। ও ধরুন 4টা দোকানে গিয়ে 2000 টাকা আয় করছে, তো কাউকে বলতে হবে এই 4টা দোকানে মিনিমাম ওয়েজ আমি করে দিচ্ছি, ওটা যদি আপনারা বলেন তাহলে ওটা আমরা করে দিই। पश्चिम बंगाल सरकार का द्वारा जो उत्कर्ष बांग्ला में ट्रेनिंग का कोर्स जो चलाया जाता है, उसी के तहत बेसी से बेसी नौकरी देने के लिए बातचीत की गई थी। अग्रवाल साहब आए थे कलकत्ता से, वो ट्रेनिंग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और सभी चैम्बर के लोग थे। हम लोगों की कुछ लोकल लोगों को लेके असुविधा थी, सब कुछ बातचीत हुआ है। उम्मीद करते हैं कि उत्कर्ष बांग्ला में गवर्नमेंट जब ध्यान दे रहा है तो और यहाँ पर रोजगार के नए नए साधन बनेंगे। On high demand, Sunita's Makeover presents one-day grand seminar for makeup and advanced hairstyle. A certified makeup artist, Sunita Bhattacharjee, first time in Asansol, 19 December 2021. Organized by KMF Beauty. Limited seat. Book your seat now. Contact number 8335062477. पश्चिम बंगाल में इन दिनों ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इन अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि आप लगातार हेलमेट का इस्तेमाल करें, बगैर हेलमेट के वाहन न चलाएं और तमाम यातायात नियमों का पालन भी करें। जगह जगह कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी के बीच हमारे पास एक खबर आ रही है कि आज आसनसोल में भी आसनसोल के ट्रैफिक अधिकारियों ने एक जागरूकता अभियान चलाया।
যে ঘুম আসলে গাড়িকে ঘুম আসতেই পারে, একদম এটা মানুষের শরীর। তো আপনি গাড়ি পার্কিংয়ে দিয়ে দিন বা যে হোটেলে জায়গা আছে বাদিকে সেখানে দাঁড় করিয়ে দিন, গাড়ি আরামসে খেয়ে দিয়ে শুয়ে যান। ঘুম ভাঙবে 5-6 ঘন্টা বাদে, তারপরে গাড়ি নেবেন, তাহলে সেফটি থাকবে, আর নিজের সেফটি থাকবে এবং পাবলিকের অ্যাক্সিডেন্টও কম হবে। রাত্রিবেলা যে অ্যাক্সিডেন্টগুলো হচ্ছে এগুলো মারাত্মক। মানে আপনার যেখানে সেখানে গাড়ি রাখে দিচ্ছেন বা ঘুম পাচ্ছে আপনি, তাও জোরে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, এগুলো ঠিক নেই। এটা 1 দিন 2 দিন হবে, পরপর হবে না। তাতে আপনার শরীর তো নেবে না, পারমিট করবেন, তাহলে অ্যাক্সিডেন্টটা বেড়ে যাবে। ঘুম পেলে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিন, জিমানি পেলেই মনে হচ্ছে গাড়ি দাঁড় করান, তাহলে অ্যাক্সিডেন্ট কমে যাবে। আমি বলছি এটা একটু প্লিজ একটু মনে রাখবেন। আর রাত্রিবেলা হলে গাড়ির টেল লাইটটা জ্বালিয়ে রাখবেন। যে হোটেলে যেখানে বাঁদিকে জায়গা পেয়েছেন রাস্তা থেকে নেমে, কিন্তু টেল লাইটটা জ্বালিয়ে রাখবেন। এই টেল লাইটটা খুব কাজে দেয়, পেছনের গাড়িকে, পেছনে যে গাড়ি আসছে তাদের এটা কাজে দেবে। আর রিফ্লেক্টার সব গাড়িতেই আছে, তবু পেছনের রিফ্লেক্টারগুলো ভালো করে মেরে দেবেন, যাতে ইলুমিনেটরটা পেছনে পরবর্তী গাড়ি লাইট পড়লে বুঝতে পারে সামনে একটা গাড়ি যাচ্ছে। ঠিক, থ্যাংক ইউ। একদম এক্সকিউজ করা যাবে না, গাড়িতে মালিক বললেও ওভারলোডিং নেবেন না। আপনার গাড়ির 5 কেজি 50 কেজি ধরন ক্ষমতা, আপনি 70 কেজি নিচে সেরকমভাবে বেনিফিট পাওয়া যাবে না। আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা ক্যান্সেল হয়েছে, রাস্তায় চেকিং করলে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা শেষ হবে। খুব কেয়ারফুলি কোনো মালিককে 6,000 টাকা দেয়, আপনার ওভারলোডের জন্য মালিক যা ইনকাম করুন, কিন্তু আপনাকে তো লাইবিলিটিতেও চলে যায়। এবার লাইসেন্স যদি বসে যায়, এবার আপনি গাড়ি থেকে যদি নামিয়েও দেয়, অন্য গাড়িতে চড়তেও তো আপনি পারবেন না। মালিক তো, যে মালিক তো আপনার লাইসেন্স নেবে, যাই গাড়ি যাই মাল। আর একটা বলি, আমি কিন্তু আপনাকে গল্প করছি, দেখুন আপনাদের যেটা ডেলি লাগে দেখবেন সে কীভাবে কেউ পশুর দানাটাকে খুলে দিয়ে দেখতে দিয়ে বেঁধে দিয়েছে, তার মধ্যে লোকগুলো নিয়ে আসে যাদের মাল আছে। এটা একটু ধ্যান রাখবেন, ওটা যাতে না চলে। লোক তোমার হয়ে যাওয়া সব দেখুন, এগুলো দোষ দোষ যায় না ড্রাইভারকে অনেক। এগুলো যদি আপনারা একটু চিন্তা ভাবনা করেন যে নিজেদের বাড়ির পরিবারের কথা, সব দেখুন অ্যাক্সিডেন্ট হলে গাড়ি ধরবে, অ্যারেস্ট করে গাড়ি ফেলে রেখে চলে গেল। ওই যে কালীবাড়ি যে অ্যাক্সিডেন্ট টোটোটা कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर स्थित श्री मारवाड़ी विद्यालय में पिकनिक को लेकर हंस रखा गया है, ताकि हंस का मांस यहां बनाया जा सके। इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस संदर्भ में एक शिक्षक से खास तौर से बातचीत की गई और आपको बता दूं कि प्रबंधन से जुड़े लोगों ने भी आज स्कूल का निरीक्षण किया और इसका सख्त विरोध किया। दादा क्या घटना हुआ है पूरा? घटना है ये कि 2 दिसंबर 2021 को हम लोग यहीं पे थे और कुछ शिक्षकों का जो हम लोग यहाँ पे जाना आना लगा रहता है, उनसे उनके माध्यम से पता चला कि स्कूल में ये लोग हंस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। स्कूल का मैं आपको बता दूं कि परिवेश ऐसा है कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई छोड़ के हर काम होता है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, देखें अगर ऐसा बात में सच्चाई है तो जाके हम लोग पड़ताल करें थोड़ा सा। तो हम लोग गए, जो मिड डे मील सेक्शन है वहाँ के जो इंचार्ज हैं, दिलीप जी हैं इंचार्ज, उनसे हमने पूछा कि यहाँ पे क्या हंस वंस बन रहा है क्या। तो फर्स्ट तो उन्होंने डिनाई किया कि नहीं यहाँ तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। फिर हम लोगों ने अपना कैमरा ऑन किया, उसके बाद अंदर हमने सर्च किया तो हमने पाया कि अंदर में छुपा के हंस रखा हुआ था। तो हमने पूछा कि ये क्या है, बोला कि ये तो हमें, फिर वो गोल गोल बातें करने लगे। फिर हमने वीडियो को बनाया, वीडियो बना के हमने बाहर में जो सेक्शन है मिड डे मील का उसका भी फोटो कैप्चर किया और इसको फिर हमने आगे जो लोग हैं उन तक ये बात को पहुंचाई है। हम जो एमएलए साहब हैं हमारे, एक्स एमएलए है, उन तक भी ये बात पहुंचाई है कि ऐसा ऐसा हो रहा है स्कूल में, पढ़ाई लिखाई हो नहीं रहा है स्कूल में, लेकिन ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही है। तो इसको थोड़ा सा देखा जाए और स्कूल में पढ़ाई का वातावरण को सही किया जाए। कितना हंस था? 2 हंस थे वहाँ पे। तो इसमें कौन कौन थे खाने में? खाने में कौन चखे मजा? मैं क्योंकि मैंने इस चीज़ का वीडियो बनाया नहीं है, लेकिन जो सुनी हुई बातें हैं उनमें बोला गया था कि दीपिका रॉय थी, संदीप मुखर्जी थे और उज्जवल जी थे
और इत्यादि और भी टीचर थे, लेकिन मैं एग्जैक्टली नहीं बोल पा रहा हूँ कि दीपिका राय तो टीआईसी है ना? ये टीआईसी है और इन्हीं के देखरेख में ये चीज बनी है वहाँ। बताइए क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम चंदन झा है और मैं यहाँ पे पीआई हूँ, पर्सन इंटरेस्टेड इन एजुकेशन। आसनसोल के युवा समाज सेवी शुभम शर्मा को भोपाल की एक संस्था की तरफ से भारत भूषण सम्मान से विभूषित किया गया। इसके बाद खास बात इंडिया की तरफ से भी उनका हौसला बढ़ाया गया। उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। मैं जो सोशल वर्क करता हूँ उसके मुझे ये अवार्ड मिला है, भारत भूषण सम्मान, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑर्गेनाइज कराती है एवरी ईयर। उसी में ये अवार्ड मुझे मिला। तो सबसे पहले मैं खास बात इंडिया को मैं वो सम्मान को देना चाहता हूँ कि आप लोग ने मुझे रिकॉग्नाइज किया इस, और ये जो अवार्ड है ये सिर्फ मेरा अवार्ड नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारे पूरे पश्चिम बर्धमान में जितने भी लोग गरीब बेसहाय जो भी के लिए काम करते हैं, वो ये अवार्ड उनके लिए भी है। तो मेरा अवार्ड भी है, लेकिन सबके लिए अवार्ड ये है, पूरे पश्चिम बर्धमान के लिए अवार्ड है। और मैं सबसे पहले हमारे जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है उनको मैं बहुत बहुत वो देना चाहता हूँ कि ये अवार्ड जो है हमारे पश्चिम बर्धमान में आया। और जितने भी लोग हमारे साथ काम करते हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि खास बात इंडिया संजय सिन्हा सर, वो लोग भी हमारे साथ रहते हैं। तो मैं सबको ही धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अवार्ड के लिए। और क्या एम है आपका, और क्या लक्ष्य? एम है कि देखिए हम लोग मैं हर एम लेके चलता हूँ, जैसे वो चाहे आपकी पढ़ाई के क्षेत्र में हो, बच्चे लोग के लिए कपड़े के क्षेत्र में हो, मतलब जो भी ज़रूरत है हम लोग पूरा करने की मैं कोशिश करता हूँ हमेशा से। तो यही एम लेके हम लोग चलते हैं हर बार। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही देना चाहता हूँ मैं कि हम लोग सब पढ़ाई करते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग काम से जुड़े रहते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर हमारे पास समय है तो हम गरीब लोग के पास या फिर नीडी पर्सन के पास जाके कुछ थोड़ा सा समय निकाल के अगर हम उनके साथ बिताएं तो हम लोग उसे पॉवर्टी लाइन से ऊपर हम लोग उसे पहुँचा सकते हैं। यही संदेश मेरा आप सभी के लिए है। On high demand, Sunita's Makeover presents one-day grand seminar for makeup and advanced hairstyle. A certified makeup artist, Sunita Bhattacharya, first time in Asansol, 19 December 2021. Organized by KMF Beauty. Limited seat. Book your seat now. Contact number 833 5062 477.